Hello students, we are discussing the chapter number 7th cube and cube roots, and in this chapter we discussed about the cube of a number, and today we are going to discuss the subtopic that is cube roots. Okay, we'll have to find the cube root. What is the meaning of cube root? First of all, see this definition. The cube root of a given number x. Correct? Cube root of a given number x means cube root of x. In square root we don't put any digit here. It means that is 2. By default it is 2, but we are seeing the cube root of x means we will put the power 3. Okay, that is the symbol of cube root, and basically this is the symbol of cube root, but we are here with that the cube root of a number x, so we will write it like this. Okay, is that number y? He said that the cube root of x is equals to y whose cube gives the number x. देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही सिंपल चीज है कि जैसे हम स्क्वायर के केस में करते हैं, आपको कंपेयर करके बताते हैं तो आपको इजी लगेगा. फर्स्ट थिंग इज दैट this is the symbol of cube root and this is the symbol of a square root. We can write it like this, but there is no need of to. We simply write it like this. Okay. After you will see that this is the cube root. Suppose I am taking square root of 9, that is equals to 3, and we can say that the multiplication of 3 by 3 means the square of 3 gives the number 9. Likewise, if I am taking the cube root of 27, that is equals to 3, means when we multiply 3 times we will get the number x. Same in the case here, that when cube root goes to another side, that will be the product of, that will be the cube of the number y. So x is equals to y cube. It means when we multiply by value of y 3 times, that gives us x. Okay. Now see how we will find the cube root of any number. Now suppose let's take a number 216. I have to find the cube root of that number, means I have to find the value of this. Okay. So 216, that would be, we'll make the prime factors, that would be 108, 254, 227, 3 9s are 27, 3 3s are, and 3 1s. So what you will do, you will write the factors inside. Okay, that would be 2 multi 2 multi 2 multi 3 multi 3 multi 3. Correct? Now as like the square root we made the pairs, but in the cube root we will take the triplets. From the one triplet of identical number, 2 will come out, and here 3 will come out, that is equals to 6. It means 216 cube root is equals to 6. So we can write that cube root of 216 is 6. Okay, please don't forget to mention 3 because it is for cube root. It complete is for cube root. If there is no symbol, no digit, then it would automatically be the square root. Okay. Next is likewise, if you are given the questions like this way, 216 upon 27, what you will do? You will again do the prime factors of both numerator and denominator, and you okay, and you can do that 216 is the cube root of number 6, and this is cube root of number 3. In this way we can do the questions of exercise. Now see 7.2, exercise 7.2. First question is find the cube roots of the following. इसमें हमें cube roots निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? 125 multiplied by 729. I'm telling you first question, that is
You will do it yourself by the prime factors, but I know that this is the cube of 5. So I did the prime factor simply, and this is the cube root of 9. Means if we multiply 5 3 times, likewise we did the previous question, you will do like okay. So this is the triplet of 5 and this is the triplet of 9. When you will learn the cubes of any number, you can simply write it like that. Okay, 5 and 9. Triplet, single digit will come outside, that is equals to 9 5s are 45. It means the cube root of this number is equals to 45. Clear? Exercise 7.2, first question we discussed. Second question is find the smallest number by which 59,400 must be multiplied to make it the perfect cube. सिंपली उसने बोला है कि 59,400 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए. तो आपको पता है कि आप क्या करते हो, इसके प्राइम फैक्टर्स करते हो, और जिसका ट्रिपलेट नहीं बनेगा उसको आप सपोज आपके पास यहाँ पे कोई नंबर आ जाए 2 मल्टी 2 टाइम्स है तो सिर्फ एक 2 की कमी है, तो आप क्या लिखोगे, द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2. इफ सपोज आपके पास एक 2 बचता है और 2 नहीं है तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टी 2 4 हो जाएगा. तो आप क्या लिखोगे, द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 4 टू मेक इट द परफेक्ट क्यूब. अब उसने बोला है कि ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट आया उसका भी क्यूब रूट. सपोज एक सिंपल से क्वेश्चन से मैं आपको बता देती हूँ इसे. सपोज हमारे पास एक नंबर 3 है, उसने पूछा व्हाट नंबर शुड इट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट द परफेक्ट क्यूब. अब आपको पता है कि 3 को हम 2 टाइम्स और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बनेगा. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 3 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 9 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब. इफ it would be perfect cube, then the number will be 27. Correct. Now you can find the cube root of 27, means the number which you will obtain by multiplying it. So after that you will find the cube root of that number. It means like 27. Clear? Next is find the cube roots of the following numbers using ones digit method. This method is left only cube root by ones digit method. See what is this method. This is bit different from the other questions. In this question we are I am telling you with the example number 6 first. Okay, 6th example से आपको बता दूं 6th part से, फिर आप अपने आप कीजिएगा इसको. 6 5 8 5. अब देखिए इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले वंस प्लेस के डिजिट को नोटिस करेंगे. थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको. इसमें हम वंस प्लेस के डिजिट को नोटिस करेंगे सबसे पहले. ठीक है, अब आपने देखा कि जो वंस प्लेस का डिजिट है वो 3 है. अब आप देखेंगे किस नंबर को मल्टीप्लाई हम 3 टाइम्स करें कि हमारे पास लास्ट में क्या आए, 3 आए. तो आप देखेंगे कि जो 1 का क्यूब है उसके लास्ट में 1 आएगा, 2 के क्यूब में 8 आएगा, 3 के क्यूब में 27 आएगा, 4 के क्यूब में 4 आएगा. 4 का क्यूब देखो होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125 एंड 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, इसी तरह से 8 का क्यूब होता है 512. लेकिन हमें वंस प्लेस का डिजिट क्या चाहिए था, 3. तो हमने देखा कि जब हम 7 का क्यूब करते हैं तो हमें वंस प्लेस का डिजिट क्या मिलता है, 3. देखिए ये जब आपको लर्न हो जाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा. जैसे मैंने सिंपली लिख दिया तो मुझे पता है कि किसके डिजिट के लास्ट में 3 आ रहा है. क्यूब करते हैं उसका तो 7 के, तो हम क्या करेंगे इस 3 डिजिट्स के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 7. ठीक है, सिर्फ वंस प्लेस के डिजिट को नोटिस करेंगे कि वो किसका क्यूब है. हमें पता लगा वो 7 का क्यूब है, तो हमने वंस, टेंस और 100 प्लेस के डिजिट की जगह पे एट द प्लेस ऑफ दीज 3 डिजिट्स वी विल जस्ट राइट दी 7.
ओके, आफ्टर दैट दिस पार्ट इज लेफ्ट विद अस। अब हमारे पास 658 रह गया। 658 हम देखेंगे कि किसका क्यूब है। मैं आपको 8 तक बता चुकी हूँ। 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 658 किसके क्यूब से छोटा है या किसके क्यूब के इक्वल है। आप देखोगे कि 8 और 9 के क्यूब के बीच में लाई करता है, नहीं लाई कर रहा है, 8 और 9 के क्यूब के बीच में लाई करता है। तो आप क्या लिखेंगे, 8 क्यूब। ठीक है, मीन्स 658 क्या है, 8 के क्यूब से तो बड़ा है, करेक्ट, 8 के क्यूब से बड़ा है और 9 के क्यूब से छोटा है। मतलब इन दोनों के क्यूब के बीच में 658 लाई कर रहा है। तो हम क्या लेते हैं, छोटे वाला नंबर लेते हैं, छोटे वाला डिजिट लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, 8। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 87। करेक्ट। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अगर आपने 10 तक भी लर्न कर रखे हैं क्यूब, आपके सामने ये सभी क्यूब्स हैं, आप इसको यहीं से नोट डाउन कर सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं। आपने सिर्फ वंस प्लेस का डिजिट देखना है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, वंस प्लेस का डिजिट आप नोटिस करेंगे, वो किसका है, उसके लास्ट में 7 का क्यूब होता है। तो हमने लास्ट में क्या लिख दिया, सिंपली 7। फिर हम फर्स्ट जो भी नंबर, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट्स भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो हमने क्या किया, 658 आ गया हमारे पास। अब 658 किस किस के क्यूब में लाई करता है, हम जो छोटे वाला पार्ट होता है उसको लेते हैं, बड़े वाले को नहीं लेंगे। सो वी टुक द 8 एंड दैट वुड बी 87। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें देखिए फर्स्ट इसके थर्ड के फर्स्ट पार्ट में 0 दिया हुआ है, तो ये तो सिंपली 0 हो जाएगा। उसके बाद 1 दिया हुआ है, तो क्या होगा, 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 के एंड में 1 आता है। उसके बाद हमें दिया है 64। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसमें तो 3 डिजिट्स है ही नहीं, नो इश्यू, अगर नहीं है तो आप क्या देखोगे, 4 कहाँ पे आता है, किसके क्यूब में, 4 के क्यूब में आता है। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। ठीक है, तो आपको ये सिंपली पता ही है। अदरवाइज आप क्या करोगे, 4 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, बट हमारे पास 100 प्लेस तक कुछ है ही नहीं। सो क्यूब रूट ऑफ 64 विल बी 4। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज 343। अब देखिए, अब आप बोलेंगे 343, लास्ट में देखेंगे 3 कहाँ आ रहा है, ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। 4 डिजिट्स का है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि 5832। ठीक है, जब हम 8 का क्यूब करते हैं तो 8 का क्यूब आता है 512। इट मीन्स लास्ट डिजिट किस में आता है, 8 के क्यूब में। 3 के प्लेसेस पे हम क्या ले लेते हैं, 8। अब देखिए ये कहाँ पे लाई करता है, 1 और 2 के क्यूब में लाई करता है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 1 और 2 के क्यूब में लाई करेगा। हम कौन सा लेते हैं, छोटा डिजिट, 18 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया है, 216 और 1331। इसका क्यूब रूट लेंगे कैसे, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। अगर कुछ डिडक्ट हो रहा है तो उसे कर लीजिएगा, नहीं हो रहा तो सिंपली आप उनके ट्रिपलेट्स बना देंगे। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। इट इज ऑल्सो लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज। हमें क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम दिया है, हमें उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। हम क्या लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। हम क्या ले लेंगे, उसकी लेंथ ले लेंगे। हमने उसकी ले ली लेंथ x। ठीक है, अब हमें उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि उसका जो वॉल्यूम है, इसको आप v भी ले सकते हैं। ठीक है, वैसे उसका वॉल्यूम क्या होता है, v क्यूब 4096 के इक्वल। अब हमने यहाँ पे x दिया तो आप यहाँ पे x ही मेंशन करेंगे। ओके, अब आप इसको x को उस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब रूट। अब आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे और आपके पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी क्यूबिकल बॉक्स। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। सेम है,
अब देखिए मैंने आपको बताया था कि माइनस का क्यूब करते हैं, सपोज ऐसे कर रहे हैं तो वो क्या रहता है, माइनस ही रहता है। इसी तरह से अगर उसका क्यूब रूट करेंगे तो भी वो माइनस में ही आएगा। देखिए जैसे हमें -9261 इसका क्या करना है, क्यूब रूट करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, माइनस को बाहर ले आएंगे, ओके। इसका सिंपली प्राइम फैक्टर से क्यूब रूट निकालेंगे और माइनस का साइन एज इट इज ही रह जाएगा बाहर, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 4994 मस्ट बी डिवाइडेड। किससे डिवाइड करें, इस तरह से क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 0.027 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ -0.008, ओके। अब देखिए आपने क्या करना है, 27 डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 8/1000, ठीक है। माइनस का साइन था तो माइनस का साइन आप सीधा बाहर भी ले सकते हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ की बजाय आप डायरेक्टली बाहर ही ले लेंगे और इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। 27 किसका है, 3 का, और ये इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 10। 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 2। इसका क्या हो जाएगा, 10। इसकी जगह हमने 10 ले ली, क्लियर है। माइनस का साइन एज इट इज क्या आ गया, -6/100। इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट टू डेसिमल दैट वुड बी -0.06, ओके। नेक्स्ट इज फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। जैसे हमने यहाँ पे किया था डेसिमल हटा के, इसी तरह से आप 10th क्वेश्चन में करेंगे। क्यूब रूट आपको निकालना है और डेसिमल हटाएंगे और ऊपर वाले पोर्शन का क्यूब रूट निकाल लेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर से देखिए हमने स्क्वायर रूट जब निकाला था तो उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी था प्लस लॉन्ग डिवीजन मेथड भी था, बट क्यूब रूट के केस में आपके पास सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो इस चैप्टर में आपको प्रोबेबली कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी प्लीज वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन एंड गो थ्रू द एग्जांपल्स टू, ओके। थैंक यू।